ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چھوڑ دے میری بیٹی کو، وہ روتی ہوئی حفصہ کو اپنے شوہر سے چھڑوا رہی تھی۔ پیسے دے مجھے ورنہ اس کو بیچ کر پیسے کما لوں گا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا کہ اس کی ماں نے 12 سالہ حفصہ کو اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ میری بچی کوئی بکاؤ مال نہیں ہے، میری عزت ہے، اس کی جانب آنکھ بھی اٹھائی نہ۔ اس وقت نجمہ شیرنی بنی اپنی بیٹی کے دفاع میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے بیچ کر پیسے کما لوں گا، پیسے دے مجھے۔ وہ نشے کے لیے تڑپ رہا تھا، اسی وجہ سے اس کی نظروں میں آج حفصہ کا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں تجھے کہہ رہی ہوں چھوڑ دے میری بچی کو۔ نجمہ نے اسے دھکا دیا۔ وہ پہلے ہی نشہ نہ ملنے کے سبب بے جان تھا، لڑک کر دور ہوا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ نجمہ اپنی بچی سمیت کمرے میں بند ہو گئی۔ نجمہ اس مرد سے شادی کے لیے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا جس کے لیے گھر سے بھاگ کر آئی تھی وہ نشئی نکلے گا۔ اس کی زندگی 13 سال سے عذاب میں پڑی ہوئی تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بھائی تھا جس نے جینا مرنا ختم کر لیا تھا۔ اس چھت کے علاوہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ حفصہ کو باہوں میں بھینچے رو رہی تھی۔ وہ 12 سالہ معصوم لڑکی ان سب باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اسے اپنے باپ سے شدید نفرت تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہ کھا پاتے تھے اور نہ رہ پاتے تھے۔ ہر وقت اس کے باپ کا ڈر سر پر سوار رہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس دن سے چھپانے لگی تھی۔ سگار کا گہرا کش لیتا اس نے سامنے کی جانب دیکھا جہاں اس کا آدمی سر جھکائے کھڑا تھا۔ سر غلطی ہو گئی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ غلطی کی سزا ہوتی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سر معاف کر دیں، یہ آخری بار ہوا ہے، اس نے معافی چاہی۔ اس کی شکل مجھے آئندہ کے بعد نہیں دیکھنی ہے، وہ یہ کہہ کر اٹھا اور اس کے آدمی اس کو چیخنے چلانے کے باوجود بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اس کی دہشت سے سب کانپتے تھے، اور وہیں وہ جس چیز سے ڈرتا تھا وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے ولا سے نکل کر گاڑی کی جانب آیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ اس کی ابرو کا اشارہ کافی ہوتا تھا یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے۔ وہ اپنے آفس پہنچا، سارے ورکرز کام میں مصروف تھے۔ اس نے ایک نظر میں جائزہ لے لیا تھا اور پھر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ پتہ چلا کچھ؟ اس نے کال ملا کر سیدھا سوال پوچھا۔ جلدی کام کرو ورنہ تم لوگوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اسے اس لڑکی کو تلاش کرواتے 4 دن ہو چکے تھے اور وہ 4 دنوں سے پاگل ہوا تھا۔ اگر اس کے سامنے کوئی غلطی کرتا تو وہ اسے ایسی سزا دے رہا تھا کہ سب کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ سگار دراز سے نکال کر اسے سلگھا کر پینے لگا۔ دیوار کی جانب اس کی نظریں تھیں اور ماتھے پر گہری لکیریں۔ وہ کالج سے آئی تھی اور بیٹھی ہوئی اپنی ماں کی بگڑتی حالت دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے بچانے کے چکر میں اپنے میاں سے پٹ جایا کرتی تھی۔ ماں تم چلی گئی تو مجھے کون دیکھے گا؟ اس نے خوف سے سرسراتی آواز سے پوچھا۔ کون؟ میرا اللہ ہے نا بیٹی، انہوں نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ جس بھی بیماری میں مبتلا تھی وہ اس کا آخری سٹیج تھا۔ ان کے جسم میں چند سانسیں باقی تھیں۔ جا کر ڈائری لا دے میری بچی، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا کر سفید یونیفارم کی سلوٹیں صاف کرتے اٹھی اور ڈائری اٹھا کر ماں کو دے دی۔ انہوں نے کی پیڈ موبائل سے فون ملایا اور حفصہ کو کام میں لگا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کسے کال کی ہے اور نہ ہی معلوم تھا کہ کیا بات کر رہی ہیں۔ وہ رات تک ماں کے سرہانے بیٹھی رہی تھی اور پھر صبح اس نے ماں کو کالج جانے کا بتایا۔ ان کا کوئی رسپانس نہ پا کر وہ ان کے قریب آئی اور انہیں نرمی سے پکارنے لگی۔ اماں، اس نے نرمی سے پکارا، کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پھر اس کے چلانے میں تیزی آ گئی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ ان کا وجود روتے ہوئے ہلا رہی تھی۔ اس کا باپ دوسرے کمرے میں نشے میں پڑا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر باہر آیا۔ کیا ہے؟ صبح صبح کیا رونا دھونا مچا رکھا ہے؟ اس نے حفصہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری ماں چلی گئی، وہ روتے ہوئے بولی۔
ہسپتال چلیں بابا پلیز، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ جان چھوٹی، ایسے بیمار پڑے رہنے سے اچھا ہے بندہ مر جائے، جان چھوڑے، اس کے کہتے حفصہ کا ہاتھ جھٹکا اور چلا گیا۔ اسے قبر کی ٹینشن ہو گئی تھی کہ پیسے دینے پڑیں گے۔ حفصہ پڑوس میں سے لوگوں کو بلا کر لائی تھی اور ان لوگوں نے انسانیت کے ناطے انہیں ہسپتال بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ رات میں ہی جان نکل گئی تھی۔ پھر پڑوسیوں نے مل کر تدفین کا انتظام کیا اور حفصہ کو سنبھالا۔ وہ بے سہارا ہو گئی تھی، رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس کا گلا بھی چیخ چیخ کر بیٹھ گیا تھا۔ سب چلے گئے۔ اس کا باپ رات میں آیا جب حفصہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی، اپنی ماں کو یاد کرتی رو رہی تھی۔ اے اٹھ، اس کے باپ نے لات مار کر اٹھایا۔ وہ بے حسی سے پڑی رہی۔ تیری ماں کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ میرے حوالے کر۔ اس نے حفصہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا، جن پر اس کی ماں تیل لگا کر پیار کیا کرتی تھی۔ اب وہ اس کی آہنی گرفت میں تھے۔ میرے پاس نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ چل پھر میرے ساتھ چل، اس نے حفصہ کے وجود کو گھسیٹا۔ وہ صبح سے ہی یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ مجھے نہیں جانا، اس نے چیخ کر کہا، مجھے میری ماں کے پاس رہنا ہے۔ اس نے التجا کی، روئی، گڑ گڑائی، لیکن وہ اسے گھسیٹ کر انجان جگہ پر لے آیا جہاں سب لوگ اجنبی اور الگ تھے۔ ریشما بائی، دیکھ تیرے لیے کیا مال لایا ہوں، اب مجھے پیسے دے دے، اس نے اپنی سگی بیٹی کو اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ باپ کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کیسے مجھے یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، جیسے تیری ماں نے تجھے مجھ سے دور رکھا ہوا تھا نا، اب دیکھ اس کے جاتے ہی میں نے اپنی خواہش پوری کر لی، اب تیرے ذریعے میں مال کماؤں گا، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ حفصہ اس کے پاؤں میں لپٹ گئی۔ بابا، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس نے بے بسی سے کہا۔ کوئی بھی جگہ رہنے کے بعد رہنے کے قابل بنتی ہے، اس لیے یقین رکھو یہ جگہ بھی رہنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کے باپ نے تیزی سے اسے لات مار کر دور کیا۔ بائی نے پیسوں کا بیگ آگے کر دیا۔ دیکھ لڑکی، تیرے پاس 1 ہفتہ ہے، جتنا رو سکتی ہے رو لے، پھر تجھے وہ کام کرنے ہیں جو ہم کہیں گے، سمجھی؟ ریشما بائی نے پان کی پیک گلدان میں تھوکتے ہوئے اسے دیکھا اور وہ رونے لگی۔ اسے کمرے میں لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ روز زبردستی 3 وقت کے کھانے کے ساتھ اس کی اسکن کیئر بھی کی جاتی تھی۔ اس کا آج وہاں 6واں دن تھا۔ اس کے پاس محض 1 دن باقی تھا۔ وہ پنکھے سے لٹک کر مرنے کا سوچ رہی تھی جب اچانک کمرے میں تیزی سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ چل بھائی، ریشما بائی نے بلایا ہے، اس نے کلائی تھامی اور حفصہ کو باہر لے آئی۔ یہ ساری لڑکیاں ہیں اور یہ لڑکی اسپیشل ہے کیونکہ اسے ابھی تک کسی نے چھوا ہے نہ دیکھا، بائی نے حفصہ کی جانب اشارہ کر کے سامنے بیٹھے سبطین ملک سے کہا۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ حفصہ نے آدھی آستین والی قمیض پر دوپٹہ لینا چاہا جب پاس کھڑی لڑکی نے کھینچ دیا۔ دیکھے گا نہیں تو بکے گی کیسے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو حفصہ کا وجود لرز گیا۔ تم سب باہر جاؤ، یہ بیگز رکھ کر جاؤ، سبطین ملک نے سرد لہجے میں کہتے اپنے آدمیوں کو باہر بھیج دیا اور وہ سب باہر چلے گئے۔ یہ لڑکی چاہیے مجھے، سگار سلگانے کے بعد اس نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے سگار کا دھواں اڑاتے سبطین ملک نے حفصہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ روتے ہوئے ریشما بائی کی منت کرنے لگی، پلیز مجھے کسی مرد کے پاس نہ بھیجیں، یہ غیر قانونی ہے، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ صاحب چیز بہت قیمتی ہے، ریشما نے دانت نکوسے تو سبطین ملک نے پیسوں کا بیگ اس کے سامنے پھینکا اور ایک جھٹکے سے حفصہ کی کلائی تھامی جو وہ چیختے ہوئے چھڑانے لگی تھی۔ سبطین ملک کا وجود غیرت سے لرز رہا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ، حفصہ کو گاڑی میں دھکیلتے وہ دھاڑا تھا جب حفصہ دروازے کی جانب چپک گئی۔ میں آپ کو کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی، خود کو ختم کر لوں گی، وہ روتی ہوئی مسلسل بول رہی تھی۔ سبطین ملک نے اس کی جانب دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پیچھے ایک گاڑی میں اس کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حفصہ کی مسلسل سسکی ابھر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے بیٹھا سن رہا تھا، پھر گن نکال کر اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ اب
तुम्हारे हिलने की आहट भी मुझे महसूस हुई तो सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा, समझी? वो गुस्से से धाड़ा कि हफ्सा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया और यूं बैठी जैसे उसका वजूद बर्फ का हो। वो घर पहुंचने तक साकित रही, फिर सप्तैन ने उसे गाड़ी से झटके से निकाला। वो उसके साथ घसीटते हुए अंदर आई। उसका वजूद लरज रहा था। उसने कमरे में इसे फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। हफ्सा को लगा अब उसकी इज्जत और वो दोनों खाक में मिल जाएंगे और वो अपनी मरी हुई माँ से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहेगी। वो चलते हुए उसके सामने आ बैठा, उसका दुपट्टा झटके से उसके गले से जुदा किया। कैसे पहुंची वहां? वो धाड़ा। वो लरस गई। बाबा ने बेचा था। वो जानता था, बस उसके मुंह से सुनना चाहता था। अगर तुम्हारा बाप मर जाए तो तुम रोगी? उसने सर्द लहजे में पूछा तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। उसका सर नफी में हिला। उसकी माँ के साथ धोखा हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई। वो कैसे किसी जालिम के मरने पर रो सकती थी? वो हफ्सा के करीब आया। यहां से भागने की कोशिश मत करना, तुम जानती नहीं हो मैं आम आदमी नहीं हूं, उसने सर्द और पुरस्रार लहजे में बताया तो वो डर के मारे उसे देखने लगी। मैं नहीं भागूंगी। अगर आप मुझे हाथ ना लगाएं, मेरी इज्जत की हिफाजत करें, उसने बावर कराते हुए बताया। मेरा जिस दिन तुम पर दिल आया उस दिन मैं तुम्हें हलाल तरीके से हासिल करूंगा, लेकिन तुम अभी मेरे लिए महज एक अमानत हो और बुज़दिल लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसने हफ्सा के ऊपर दुपट्टा उछाल कर कहा। ऐसे दुपट्टे से जिस्म ढांपने का कोई फायदा नहीं जिससे सब अयां होता हो। उसका दुपट्टा जालीदार था जो कि नाकाफी ही साबित हो रहा था। सप्तैन की बात सुनकर उसने दुपट्टा उतार फेंका और बेड पर गिरकर रोने लगी। वो देखने से ही कोई आम बंदा नहीं लग रहा था। उसने न जाने कितने लोगों का खून पी रखा था। वो अभी रो रही थी, सप्तैन मलिक दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। आपको मैनर्स नहीं है, लड़कियों के कमरे में ऐसे आते हैं? उसने गुस्से से पूछा। मेरे घर में मुझे किसी भी जगह आने जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, उसने घूरते हुए कहा और हफ्सा को सर्द नजरों से ऐसे देखा जैसे उसकी बात पर वो उसे जान से मार देगा। हफ्सा बोलकर पछताई थी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, उसने डरते डरते कहा। अच्छा, फिर कहाँ जाना है? उसने पूछा। कहीं भी, दारुल अमान, ईदी, कहीं भी छोड़ दें, उसने मुतमईन अंदाज से कहा। और अगर वहां तुम्हारी इज्जत किसी ने खराब कर दी फिर? और फिर से तुम रेशमा बाई के पास पहुंच गई, उसने सर तासुर अपनाते हुए पूछा कि हफ्सा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। ऐसा क्यों होगा? लरसते लहजे में वो खौफ से पूछने लगी। वो एक बार बच गई थी, लेकिन हर बार सिप्तैन उसे नहीं बचाएगा। ऊपर से वो उसे सुना भी रही थी। ऐसा हो चुका है, उसने गुस्से से कहा तो वो सर हिलाने लगी। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। गुड, और कहकर चला गया। कुछ देर बाद उसे खाना कपड़े सब पहुंचा दिया गया और वो खाना खाकर सो गई थी। उसने एक हफ्ता बेसकूनी में गुजारा था। वो दूसरी सुबह कमरे से बाहर आई तो सिप्तैन मलिक बड़े से डाइनिंग टेबल पर अकेला नाश्ता कर रहा था। वो हैरत से उसे देखने लगी। आप अकेले यहां नाश्ता करते हैं? उसने कदरे हैरानी से पूछा। मेरे अलावा यहां और कौन दिखाई दे रहा है तुम्हें? उसने बिना गर्दन उठाए पूछा। आपके घर में इतने सारे आदमी हैं, उसने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। गार्ड के लिबास में हर जगह आदमी फैले हुए थे। वो मेरे लिए काम करते हैं, उसने सर्द लहजे में कहा। लेकिन हैं तो इंसान ही ना, उसने मुंह बनाकर कहा तो वो उसकी शक्ल देखने लगा। मैं किसी को सर पर नहीं चढ़ाता, उसने अब्रू उठाकर कहा। लेकिन घर में रखते हैं, उसने हल्की आवाज से कहा और वापस कमरे में जाने लगी। आज तक सिप्तैन मलिक को किसी ने इतनी बातें नहीं सुनाई थी जितनी वो छोटी सी टीनेज लड़की सुना रही थी। वो भी कमरे में गुम होती, सिप्तैन ने उसका हाथ खींचा और उसके वजूद को दीवार से लगा दिया। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक भी है, उसने गरजते हुए बताया तो वो नासमझी से देखने लगी।
ताल्लुक? उसके लबों से सवाल फिसला। वो बिना जवाब दिए उसे कमरे में धकेल कर चला गया। वो किस ताल्लुक की बात कर रहा है? उसने अंदर आते ही सोचा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। मैंने यहां रहने का बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी, उसने सोचा। अचानक से घर की चहल पहल बिल्कुल खत्म हो गई थी। हफ्सा बाहर आई, दरवाजे से झांका और फिर कदम बाहर की जानिब उठा दिए। उसका विला किसी ख्वाब की तरह की जगह था। हफ्सा हैरत से हर एक चीज देखती चल रही थी। अचानक से ठोकर लगी। मनहूस इंसान ने विला को चीजों से भरकर कबाड़ा किया हुआ है, उसने कहते हुए सर झटका। उसकी ऑफिस की एलईडी पर हफ्सा नजर आ रही थी और उसके अल्फाज जब सुनाई दिए तो सिप्तैन ने अपने आदमियों की जानिब देखा जो उसे मुस्कुराहट दबाए देख रहे थे। उसने जाते ही उसकी खबर लेने का सोचा। उसने एलईडी ऑफ कर दिया कि मजीद उसकी गुलिफशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ऑफिस का काम करके ज़ाती काम के लिए निकल गया, ऐसे काम के लिए जहां से उसे सब हरासा नज़रों से देखते थे। उसकी एक कॉल पर लोग भागे हुए आते थे। वो रात जब घर पहुंचा तो उसकी डाइनिंग टेबल से सारी कुर्सियां गायब थीं, महज एक कुर्सी रखी हुई थी। वो हैरत से वहां आया और उसका गुस्से से बुरा हाल हुआ। हफ्सा, वो गुस्से से धाड़ा तो हफ्सा कमरे से बाहर आई। यहाँ की सारी कुर्सियां कहाँ गई? उसने कदरे ऊंची आवाज से पूछा। उसके गिर्द गर्दन घुमाने लगे कि अब ये लड़की गई। कहाँ है? कहाँ? जब आपने अकेले बैठकर खाना ठूंसना है तो एक कुर्सी काफी है, मैंने वहां बाकियों के लिए लगा दी है। वहां आपके सारे मुलाजिम बैठकर खाना खाते हैं। उसने उंगली से एक जानिब इशारा किया तो वो उसे गुस्से से देखता रहा। मैं तुम्हें जान से? तो फिर यहां क्यों लाए थे जब जान से मारना था? तो अब आप मुझे टच करके दिखाएं। वो जानती थी वो जो भी है औरतों का लिहाज करने वाला है, इसीलिए उसकी कमजोरी का फायदा उठाती वो उसे उकसा रही थी। जब यहीं रहना है तो लड़ झगड़ कर अपना आप मनवा कर रह लेती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने गुस्से से हफ्सा की जानिब कदम बढ़ाए तो वो मोटे तगड़े गार्ड के पीछे छुप गई। बाहर आओ, वो धाड़ा। भाई साहब, मुझे बचा लें, आपकी हाइट और जिसामत इस आदमी से ज्यादा है जो मुझे यहां लेकर आया है। उसने सर निकालकर गार्ड के पीछे से कहा तो वो उसकी जानिब लपका, लेकिन हफ्सा उछलकर बाहर लॉन की जानिब भाग गई। मजाल है ये मेरी किसी बात को सीरियस ले। पूरा शहर बंद करवाने वाला मर्द एक लड़की को हरा नहीं पा रहा था। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी आदमियों के सामने? उसने गुस्से से कदम उठाते सोचा। अभी वो आगे बढ़ता। सर्दी के मौसम में उसने गार्डन में पड़ा पाइप उठाकर सिप्तैन मलिक के ऊपर पानी डाल दिया। वो ठंडे ठंडे पानी पड़ने पर साकित रह गया। उसका सारा वजूद भीग गया था और सारे मुलाजिम मुंह खोले सिप्तैन को देख रहे थे और वो हफ्सा को, जो मजे से मुस्कुराकर देखती अब कह कहा लगा रही थी, इतना कि उसकी आंखों से पानी बह गया। आप कभी नहाते नहीं होंगे, मैंने आपको नहा दिया। उसने हंसते हुए पाइप को दूर फेंक दिया। वो उसके करीब जाने लगा था कि पाइप से उलझकर सीधा हफ्सा समेत नीचे की जानिब गिर गया। वो मुंजमद हो गई थी। अब वो भी घास पर गिरे पानी से गीली हो गई थी। बाल भी गीले होकर उसकी गर्दन से चिपक गए थे। सिप्तैन मलिक यक तक उसे देख रहा था और उसके मुलाजमीन ने अपनी गर्दनों का रुख मोड़ लिया था। हफ्सा ने उठने की कोशिश की, लेकिन सिप्तैन सब भूले उस पर गिरा रहा। आप प्लीज हटें, उसने सख्ती से कहा तो वो दोनों हाथ दाएं बाएं रखकर झुका रहा। उसने उठने की कोशिश नहीं की थी। वो उसकी आंखों में देखती गुस्से से उठने लगी, लेकिन चेहरे से चेहरा टकरा गया और वो वापस से कराह कर गिर पड़ी। आपके साथ मसला क्या है? वो झड़क कर पूछने लगी। मसला नहीं, मसले हैं, उसने घूरते हुए कहा। पहले तुमने मुझ पर पानी फेंका और फिर मैं जमीन पर। उसने घूरते हुए मजीद कहा कि वो उसे लब भेंचे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो रही थी। सिप्तैन मलिक उसकी चालाकी देख रहा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। फिर वो जल्दी से उठी और भागने लगी। वो मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरते हुए उठा। अजीब लड़की है, उसने सर नफी में हिलाते हुए कहा और कपड़े तब्दील करने चला गया।
मुझे बाहर जाना है, उसने गुस्से से ड्राइवर से कहा। उसे यहाँ रहते 15 दिन हो चुके थे और अब सप्तैन की शक्ल देख देख कर वो बोर हो गई थी। बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती थी। सर, मैडम बाहर जाना चाहती हैं। उसने सप्तैन मलिक को कॉल करके इजाज़त चाही और वो हूँ हाँ करने के बाद दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो खुशी से अंदर जा बैठी और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। ड्राइवर लॉन्ग ड्राइव के बाद उसे कैफे ले गया था और वो अंदर बैठी कॉफ़ी पी रही थी और ड्राइवर बाहर था। उसने मौका देखा और भाग निकली। 10 मिनट बाद वो अंदर आया तो वो वहाँ नहीं थी, तो उसकी रूह फना होने लगी और माथे पर पसीने के कतरे चमक गए। सप्तैन से सज़ा का डर जो था। ये लड़की कहाँ चली गई? उसने तेजी से उसे ढूंढते हुए कहा। सर वो लड़की, मैडम वो कहीं चली गई हैं, उसने फौरन कॉल करके बताया। वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ढूंढो उसे, वो कोई आम लड़की नहीं है। अगर बेहतरी चाहते हो तो उसे मेरे सामने पेश करो, उसने धाड़ते हुए कहा कि ड्राइवर लरस कर फौरन उसे ढूंढने भागा। उसे ढूंढते हुए 1 घंटा हो गया था। सप्तैन मलिक उसी जगह चला आया जहां से वो गायब हुई थी। उसने इर्द गिर्द तलाशी ली लेकिन वो कहीं ना मिली। सप्तैन के माथे पर बल पड़े हुए थे। उसके जबड़े ऐसे भेंचे हुए थे कि अभी टूट जाएंगे। अचानक उसे एक लड़की भागती हुई नजर आई और वो फौरन से उसके करीब पहुंचा। इमरजेंसी नंबर, वो मेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं, उसने तेजी से सप्तैन का हाथ थामकर नामालूम होने की वजह से उसका नाम इमरजेंसी नंबर ही रख दिया था। वो लम्ब भेजे पहले उसे देखने लगा, फिर सामने से मलंग स्टाइल वाले बूढ़े को। ये तुम्हारा बाप है? उसने गुस्से से पूछा। इसे कब से ढूंढ रहा था? हाँ, मैं उन्हें देखकर बाहर गई थी शॉप से और उन्होंने किसी को बुलवा लिया जो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। उनके पीछे आ रहे हैं वो भी, उसने लरसते हुए सप्तैन मलिक का हाथ पकड़कर कहा तो वो लब भेंचे देखने लगा। फिर उसने आदमियों को इशारा किया और खुद हफ्सा का हाथ थामकर गाड़ी में बैठा। ये क्या करेंगे? उसने पूछा। तुम टेंशन ना लो, उसने जवाब देते अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो अपने विला पहुंचकर अपने आदमियों का इंतजार करने लगा। उसके पांव मुसलसल हिल रहे थे। हफ्सा उंगलियां मसलती उसके गुस्से से भेंचे हुए चेहरे को देख रही थी। वो सारे अंदर आए तो सप्तैन उठ खड़ा हुआ। काजी साहब को लेकर आओ, उसने हुक्म दिया। 3 आदमी सर हिलाकर बाहर निकल गए तो हफ्सा ना समझी से उसे देखने लगी। सर पर दुपट्टा लो, काजी साहब के आते ही उसने हुक्म दिया। क्यों? उसका सवाल बेसाख्ता आया था। सवाल जवाब का वक्त नहीं है। वो उस पर दुपट्टा डालकर उसे कंधे से थाम कर बैठा दिया और फिर निकाह शुरू हो गया। हफ्सा ने चौंक कर सर उठाया। सप्तैन ने इशारे से कबूल है कहने का कहा तो वो सर हिलाने लगी। उसने मुंह से कहा एतराफ़ करो और उसने 3 बार मुंह से एतराफ़ किया। सप्तैन मलिक ने सबको ट्रीट दी और सबको बाहर डिनर करने का कहा। हफ्सा परेशानी से उसे देखने लगी। अब से मेरे रूम में रहोगी, उसने बेलचक लहजे में कहा। क्यों? वो सटपटाकर सवाल कर रही थी। क्योंकि मैं चाहता हूं। निकाह हो गया है हमारा तो अब साथ रहना जायज़ है, उसने कहते हुए हफ्सा की जानिब कदम उठाए। और आज हमारी वेडिंग नाइट भी है ना, उसने मुस्कुराते लहजे में कहा। मेरे पास मत आए, उसने पीछे होते हुए कहा। हक से आ रहा हूं। उसकी घबराहट से महसूस होता वो उसके करीब से करीब तर होते जा रहा था। सप्तैन नहीं, मैं कह रही हूं मुझसे दूर रहें, उसने गुस्से से कहा तो वो अपना नाम लिए जाने पर हंसने लगा। इमरजेंसी नंबर कह दो, ऐसा इमरजेंसी ट्रीटमेंट दूंगा कि याद रखोगी, उसने मायनी खेजी से कहा। मैं आपको, वो लरसते हुए कहने लगी। हाँ मुझे, बोलो आगे, उसने दीवार पर दाएं बाएं हाथ रखकर पूछा। उसकी सीटी गुम हो गई थी। हफ्सा के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने उंगली से इसके माथे पर आया पसीना साफ किया। माई गर्ल, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी से डर रही हो, उसने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। आप अच्छे इंसान नहीं हैं, उसने सटपटाकर बताया। अच्छा,
और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अच्छा नहीं हूं? उसने अबरू उचकाकर पूछा। आप कोठों पर जाते हैं और लड़कियों को देखते हैं और उन्हें खरीदते हैं। उसने सप्तैन के किरदार को निशाना बनाया। अच्छा, और? वो मुस्कुराहट रोके पूछने लगा। और आपने मुझे इतने सारे पैसे देकर खरीदा ताकि मेरे साथ नाजायज। उसकी बात मुकम्मल ना हो पाई थी कि सप्तैन ने हाथ दीवार पर मारा। मैंने कब तुम पर अपनी हवस जाहिर की है? कब तुम्हें छूने की कोशिश की है? तुम यहां 20 दिन से हो। बताओ, क्या तुम मुझे रोक सकती थी अगर मैं चाहता तो? उसके गुस्से में माथे पर बल पड़े हुए थे। सप्तैन को उसका यूं बदकिरदार कहना इतना बुरा लगा था कि वो बता भी नहीं सकता था। आप अच्छे, उसने हकलाकर कहा। आप अच्छे हैं जब भी आपका नाम इमरजेंसी नंबर रखा था, उसने सर हिलाते हुए बताया। वाह, क्या ही कहने, उसने गुस्से से मुड़कर कहा। वो दूर हो गया और हफ्सा की जान में जान आई। सारी हवा ही खींच ली थी। उसने गहरी सांस भरते कहा, सांस भी खींच सकता हूं, बस एक बार मेरे करीब तो आकर देखो। वो सुन चुका था। उसका जवाब सुनकर हफ्सा के कदम ठुठक कर रुके। इतने लंबे कान हैं हाथी की तरह, उसने तौबा करते हुए कहा और अपने साथ वाले कमरे में बंद हो गई। शाम में वो काम से वापस आया, जहां हफ्सा को ना पाकर उसने सब जगह ढूंढना शुरू किया। मैडम कहाँ हैं? उसने मुलाजिम से पूछा। सर, वो कमरे से बाहर नहीं निकली हैं आज सारा दिन, उसने बताया। खाना भी नहीं खाया? इसने पूछा। नहीं सर, उसने नफी में सर हिलाया और वो उसके कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलो हफ्सा, वरना मैं तोड़ दूंगा, उसने गुस्से से कहा। वो अंदर बैठी डर कर कंफर्टर में छुप गई। सप्तैन ने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसे छुपा देखकर लबों पर आती मुस्कुराहट रोकी। तुम मुझे वेडिंग नाइट पर ऐसे ख्वार नहीं कर सकती हफ्सा, उसने सर्द लहजे में कहा तो वो कंफर्टर में मजीद छुपने लगी। जब सप्तैन ने कंफर्टर खींचा तो वो लहराकर उस कंफर्टर के साथ ही उसकी बाहों में आ गिरी। तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा और वो सटपटाकर उससे दूर होने लगी। न जाने आपने कितनी लड़कियों को ऐसे ही बाहों में भरा होगा, उसने गुस्से से कहा और दूर हुई। मेरे आदमी गवाह हैं, 10-12 के अलावा और नहीं थी। उसे जलाने का मौका मिला था और वो भी भरपूर अंदाज से उसे जलाने पर तुला हुआ था। वो उसे तिरछी नजरों से देखने लगी। आप मेरे करीब नहीं आ सकते, आप उन 12-13 के पास जाएं, उसने भागने की कोशिश करते हुए कहा। सप्तैन मलिक ने बरवक्त उसे अपनी बाजुओं में थाम लिया। अपना एक का इजाफा तो करती जाओ, उसे बचाने का सोचकर यहां लाया था, नहीं मालूम था वो उसे अच्छी लगने लगेगी। तुम्हें एक बात बता दूं, उसके बाद तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी, उसने हफ्सा को बेड पर डालकर भागने के सारे रास्ते बंद करते कहा। क्या? वो खौफ से आंखें फैलाए उसे देखते हुए पूछने लगी। यही कि पुप्पो ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कॉल की थी, जिस दिन मैं तुम्हें लेने आया उससे 1 हफ्ता पहले, उसने हफ्सा के चेहरे पर आई लटों को पीछे करते हुए कहा, जिस पर हफ्सा ने बेयकीनी से उसे देखा। बाबा उनसे बहुत नाराज थे। उन्होंने गलत शख्स से भागकर शादी की, कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन वो जो नंबर यूज करते थे मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब से उनकी डेथ हुई थी, मम्मी का गम उन्हें भी खा गया था। पुप्पो ने अपने भाई को कॉल की, लेकिन फिर उन्हें मालूम हुआ कि मैं सप्तैन मलिक हूं तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे पाला था, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी रही थी, और उनके जाने पर मैं बहुत गमगीन रहता था। मैं उन्हें याद करता था। मम्मी कहती थी उनके लिए दुआ करो कि वो खुश हों, लेकिन मालूम नहीं था कि वो तो खुश ही नहीं थी, वो तो दुखी और कैद में है। बाबा ने कभी पुप्पो को ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो उनको याद करके रोते रहते थे, तड़पते थे। मैंने सोचा जब बड़ा हो जाऊंगा तो उन्हें ढूंढ निकालूंगा। फिर एक दिन उनकी कॉल आ गई। वो बाबा से बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बताया कि बाबा और मामा दोनों ही चल बसे हैं, तो वो रोने लगी और मुझे बताने लगी कि तुम्हारे बाप कैसे इंसान हैं।
वो तुम्हें बेच देंगे। मैं उसी वक्त आना चाहता था, लेकिन पुप्पो ने मना करते हुए कहा कि मेरे बाद हफ्सा पर तुम्हारा हक है, मेरी अमानत का ख्याल रखना। मैंने प्रॉमिस कर लिया कि मैं ख्याल रखूंगा। 4 दिन पागलों की तरह ढूंढता रहा। फिर मैंने तुम्हारे बाप का पीछा किया। मुझे मालूम हुआ कि वो बाइकी अड्डे पर गए थे, इसलिए मैंने वहीं का रुख किया और उम्मीद के मुताबिक तुम मुझे वहीं मिल गई। उसने सारी बात एक ही सांस में बता दी। हफ्सा ने उसकी जानिब हैरत से देखा। वो उसे कनखियों में देख रहा था। मेरा अंदाज ही ऐसा है, तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन पुप्पो माँ के अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई। तुम वाहिद हो जो मेरे इतने करीब आई हो, उसने लबों को छूते हुए कहा। तो वो यकटक उसे देखने लगी। आप सनी हैं? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, पुप्पो प्यार से सनी कहती थी। उन्हें मैं सूरज की तरह गर्म और चमकदार लगता था, उसने हंसकर बताया। वो मुझसे आपका जिक्र करती थी और बताती थी कि आप बचपन से ऐसे हैं। उसने सर हिलाते हुए उसे बताया। तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा, उसने आंख दबाते हुए कहा तो वो सटपटाकर पीछे होने लगी। आप मुझसे बात ना करें, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे कज़न हैं? उसने सख्ती से पूछा तो वो उसे देखने लगा। बिल्कुल बेवियों वाला रोब जमाती हो, उसने हंसी जब्त करते हुए कहा तो वो उसे घूरने लगी। मैं कोई रोब नहीं जता रही, उसने आंखें उठाते हुए बताया। अच्छा चलो, अब उठो, मेरे कमरे में चलो, उसने हफ्सा का हाथ थामकर उठाना चाहा। मैं नहीं जाऊंगी, उसने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, उसने खींचते हुए कहा और हिफ्सा ने उसके हाथ पर दांत गाड़ दिए और भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। सप्तैन मलिक हैरत से उसकी जुर्रत देखने लगा। हफ्सा, उसने दांत कुचकुचाकर उसका नाम लिया और वो वॉशरूम में खौफ से बेसन से चिपक गई। हफ्सा बाहर आओ, उसने गुस्से से पुकारा और वो वॉशरूम के बाहर खड़ा उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। इमरजेंसी थी तो बोल देती, मैं हाथ छोड़ देता, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। मुझे आपके साथ नहीं जाना, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। वो समझ गया कि वो बाहर नहीं आने वाली। उसने कदम बाहर की जानिब उठाए और उसके कदमों की आवाज पर हफ्सा मुतमईन होने लगी। फिर सप्तैन मलिक दबे कदमों बेड पर जा लेटा। वो बाहर आई। समझते क्या है खुद को, निकाह हो गया है तो कुछ भी कर लेंगे, उसने गुस्से से हाथ नचाकर कहा। कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूं मैडम हफ्सा। उसकी बात और आवाज सुनकर वो उछल पड़ी। वो बेड पर सर हथेली पर टिकाए बैठा हुआ था। आप तो चले गए थे ना, उसने सटपटाकर पूछा। मैं लीडर हूं, आम नौकर नहीं कि मुझे मुजरिम को पकड़ना और उसे पिंजरे से बाहर निकालना नहीं आता होगा। उसने मुस्कुराकर हिफ्सा की उड़ी रंगत को देखा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं यहां रुक जाता, लेकिन क्या है ना, मुझे अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती, इसीलिए अब तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा। वो मायनी खेजी से मुस्कुराते हुए बोला और हफ्सा की जान हथेली पर आ गई। आप इंतहा की बेशरम इंसान हैं, उसने गुस्से से भागने की कोशिश करते कहा। अभी बेशर्मी दिखाई ही कब है तुम्हें, अब तो मौका मिला है। वो उसकी बातें सुनती भागने की कोशिश में थी कि सप्तैन मलिक ने उसकी बाजुओं को पकड़ा हुआ था। अच्छा, एक शर्त पर छोड़ दूंगा, उसने हफ्सा के कानों में कहा। कैसी शर्त, वो पूछने लगी। मुझे किस दे दो, मैं चला जाऊंगा, उसने मुस्कुराकर कहा तो उसकी जान हवा होने लगी। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। फिर मेरे साथ नाइट गुजारनी होगी, चलो तुम्हारी खातिर इसी कमरे में सही, उसने मुस्कुराकर कहा और उसकी आंखें हफ्सा के चेहरे के जाविये पर टिकी हुई थी। उसने पलटकर सप्तैन मलिक को देखा। दिल जरूरत से ज्यादा स्पीड में चलने लगा। फिर उसने खुद को पंजों के बल खड़ा किया और आंखें बंद करके उसके
चेहरे पर एक जानिब लब रख दिए। वो पहले हैरत में मुब्तला हुआ और फिर मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। वो अपने पंजों के बल खड़ी कपकपाते लबों से दूर हो रही थी। सप्तैन मलिक ने उसकी कमर के गिर्द हिसार डालकर उसे अपनी जानिब खींच लिया और वो कटी पतंग की तरह उसके सीने से आकर लग गई। उसका कद सप्तैन मलिक के कंधे से भी नीचे था। उसका सर सीधा सप्तैन के दिल पर जाकर लगा था। वो हिचकिचाकर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त के सबब हफ्सा के लिए ये कोशिश नाकाम ठहरी। चलो अब जाकर सो जाओ, वरना मैं कोई भी हद पार करने को तैयार हूं। उसने अभी भी हफ्सा को नहीं छोड़ा था और वो सुनने के साथ फौरन से उसके हिसार से आज़ाद होकर कंफर्टर में घुस चुकी थी। तो वो उसे देखकर हंसने लगा और कमरे से बाहर निकल गया। सुबह के वक्त वो अपने सारे आदमियों को खड़ा किए कुछ हिदायत दे रहा था। हफ्सा की तुम लोगों ने बहुत ज्यादा हिफाजत करनी है। तुम लोग जानते हो कि मेरे कितने दुश्मन हैं। कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मेरा काम ऐसा है कि इसमें दुश्मन बन ही जाते हैं, और अगर किसी को पता चला कि वो मेरी बीवी है तो वो लाजमी हफ्सा को नुकसान पहुंचाने की और मुझे कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसीलिए तुम सबने हफ्सा के ऊपर और इर्द गिर्द भरपूर नज़र रखनी है। सारे नौजवान गार्ड्स उसकी हिदायत सुनकर सर हिलाने लगे और फिर वो उठकर हफ्सा को उठाने चला आया। वो तैयार थी, बस बाहर आने का सोच ही रही थी। तो सप्तैन मलिक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो दरवाजे के उस पार खड़ी थी। उसने हफ्सा की कलाई थाम ली और उसे लेकर बाहर चला आया और नाश्ता लगवाने का कहा। जैसे ही नाश्ता लगा, उसने हफ्सा को अपने साथ बैठने का इशारा किया। वो तजब्जुब की कैफियत में वहां पर बैठ गई। फिर सप्तैन मलिक ने खुद उसके लिए नाश्ता निकाला और उसकी प्लेट में डाला तो वो हैरत से चेहरा उठाए उसकी जानिब देखने लगी। उसने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा और नाश्ता करने का इशारा किया। वो हैरत में मुब्तला थी कि सप्तैन मलिक इतना कैसे बदल सकता है, क्योंकि जब से वो आई थी वो देख रही थी कि वो किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करता, सिर्फ हुक्म देता है और उसके काम कर दिए जाते थे। और इस बार हफ्सा के लिए वो खुद से बहुत कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी तवक्को हफ्सा को क्या, उसके किसी मुलाजिम को भी नहीं थी। वो बैठी चिड़ियों की तरह नाश्ता चुग रही थी। सप्तैन मलिक ने उसके आगे से प्लेट हटाई तो वो चौंक कर सर उठाए उसे देखने लगी और फिर उसने फोक की मदद से अंडे को लपेटकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। हफ्सा मुंह खोले उसे देखने लगी और सप्तैन ने उसके मुंह में कांटा डाल दिया। लामोहाला उसे नवाला चबाना ही पड़ा। फिर ऐसे करते हुए सप्तैन ने उसे पूरा नाश्ता करवाया। अगर तुम्हारे साथ बैठकर मैं नाश्ता करने लगा तो दोपहर हो जाएगी। हफ्सा उसकी बात सुनकर अपने लबों पर आती मुस्कुराहट रोकने लगी। मैंने थोड़ा ही ना कहा था कि आप मेरे साथ नाश्ता करें। उसने भी दू बदू उसको जवाब दिया। एक बात बताऊं, तुम्हारी जबान सिर्फ मेरे सामने ही चलती है, वरना तो तुम्हारी जबान हमेशा बंद रहती है। शुक्र मनाओ कि तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, वरना तुम्हारी जबान खींच लेता। सच ही कहा है जिसने भी कहा है कि मोहब्बत इंसान को कमजोर कर देती है। उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। हफ्सा को हैरत और सदमा पहुंचा कि सप्तैन मलिक उससे मोहब्बत करने लगा है, और वो जब पास होता था तो उसका दिल जोरों से धड़कता था, और वो ऐसी शख्सियत का मालिक था कि कोई भी उसे देखकर बार बार देखने की तमन्ना करता। उसका गरूर उस पर जचता था। लेकिन हफ्सा भी अपने नाम की एक थी। जो कभी किसी के साथ नहीं किया था, वो सब कुछ सप्तैन मलिक के साथ करने पर तुली हुई थी। वो नाश्ता करके चला गया और हफ्सा गार्डन में आकर बैठ गई। सप्तैन मलिक का एक आदमी उसके पास आया। मैडम वो सर का एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया है। उसने डरते हुए अफसोस से बताया तो हफ्सा बिना कुछ सोचे समझे उठी और उसके पांव तेजी से बाहर की जानिब उठे। गार्ड ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। पता नहीं, इस आदमी ने उसे क्या कहा तो वो मुतमईन होता सर हिलाने लगा और फिर अपनी गाड़ी में हफ्सा को बिठाकर
तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। हफ्सा को एहसास हुआ कि उसे जाल में फंसाया गया है। उस गाड़ी ने उनका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ था। हफ्सा डर कर उस आदमी से पूछने लगी कि ये सब हो क्या रहा है। वो पलटा और मुस्कुराने लगा। मैं सिप्तैन मलिक का सबसे बड़ा दुश्मन का आदमी हूं और मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां पर सिप्तैन मलिक बेबस होता है। उसने कहते हुए हफ्सा का हाथ थामा और गाड़ी से बाहर निकालने लगा और जो दूसरी गाड़ी थी उसमें बिठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फड़फड़ाती हुई उन लोगों को मौका नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उस आदमी ने हफ्सा के मुंह पर केमिकल वाला कपड़ा रख दिया और वो होशो हवा से बेगाना होकर वहीं पर झूल गई। उन आदमियों ने हफ्सा को गाड़ी में डाला और गाड़ी आगे भगा ले गए। पीछे सिप्तैन मलिक का दिल चाहा कि हफ्सा को देखे। उसने घर में लगे कैमरों को जूम किया, लेकिन हर जगह से उसे हफ्सा के बजाय खाली खाली घर देखने को मिला। वो हैरत से हफ्सा को कॉल मिलाने लगा, लेकिन मोबाइल मुसलसल रिंग के बावजूद भी कोई नहीं उठा रहा था। उसके माथे पर बल पड़े कि हफ्सा उसे इग्नोर कर रही है। उसने घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल की तो एक आदमी ने उसकी कॉल उठाई। हफ्सा कहाँ है? उसने छूटते साथ पूछा। सर, वो तो गार्डन में बैठी हुई थी, उसने बताया। उसे बुला कर लाओ और बोलो मुझसे बात करे। उसने हुक्म दिया तो वो आदमी सर हिलाते हुए गार्डन की जानिब बढ़ गया, लेकिन जब गार्डन में आया तो देखा उसका मोबाइल घास पर पड़ा है और हफ्सा कहीं भी नहीं। वो तेजी से चौकीदार की जानिब बढ़ा। हफ्सा मैडम कहाँ है? उसने जाते साथ पूछा। वो अपना जमाल है ना, वो लेकर गया है, उन्हें कंपनी में बुलाया था, वो बताने लगा जब उस आदमी के माथे पर बल पड़े और जिस्म से रूह फना होती महसूस हुई, क्योंकि उसका बॉस तो खुद उससे बात करने के लिए बोल रहा था और वो यहां कहीं नहीं थी। इसका मतलब था कि किसी ने उसे जाल में फंसाया था। अब बॉस को बताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए वो तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से में आया और लैंडलाइन से अपने बॉस को कॉल करने लगा। सर, हफ्सा मैडम यहाँ कहीं नहीं है और गार्ड ने बताया है कि एक आदमी जमाल हफ्सा मैडम को अपने साथ ये बोलकर लेकर गया है कि आपने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया है और मैडम उनके साथ चली गई हैं। उसकी बात सुनकर सिप्तैन मलिक को बेइंतहा गुस्सा आया। यू बास्टर्ड, यू स्टूपिड, तुम लोग कहाँ मरे हुए थे जब वो मेरी बीवी को ले जा रहा था? तुम्हें पता भी है मेरे कितने सारे दुश्मन हैं। आज ही सुबह तुम लोगों को बताया था कि मेरे सारे दुश्मन हैं जो चाहेंगे कि हफ्सा को मेरी कमजोरी बनाकर मुझे कमजोर करें। मुझे नहीं पता, मुझे 2 घंटे तक मेरी बीवी चाहिए। उसने अपने आदमियों को गुस्से से कहते खुद भी बाहर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन 5 मिनट के बाद ही उसके नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। उसने फोन उठाया। कैसे हो मलिक साहब? सुना है अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, बहुत मजे की है तुम्हारी बीवी, मेरे कब्जे में है और अगर तुम चाहते हो कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे तो फौरन यहां चले आओ। उसने बात सुनकर मुट्ठी भेजी। अगर मेरी बीवी का बाल भी भीगा हुआ तो याद रखना शेर खान, मैं तुम्हारी नस्लों को मिटा दूंगा, तुम्हारी नस्लें बाकी नहीं रहेंगी। उसने गुस्से से धाड़ते हुए कहा कि शेर खान को कॉल रखनी पड़ी और वो तेजी से शेर खान के अड्डे पर पहुंचा और उसने अपने साथियों को भी बता दिया था कि वो कहाँ जा रहा है। उसे शेर खान को पकड़ना था, लेकिन अभी तक उसके पास कोई माकूल वजह नहीं थी कि जिसकी वजह से शेर खान को पकड़ा जा सकता था, और अब उसके पास एक बहुत बड़ी वजह आ चुकी थी। उसकी बीवी पर उसने नजरें रखी थी और उन नजरों को सिप्तैन मलिक निकालना जानता था। वो अड्डे पर पहुंचा, उसकी तलाशी ली गई, फिर उसके आदमी सिप्तैन मलिक को अंदर की जानिब ले गए और उसे शेर खान के सामने पेश किया गया, जो कि टांग पर टांग जमाए बैठा था। उसके इर्द गिर्द लड़कियां बैठी थीं। शुक्र है तुम आ गए, वरना मैंने सोचा था तुम्हारी बीवी को इन लड़कियों की जगह रख लूं अपनी खिदमत के लिए। उसकी बात सुनकर सिप्तैन गुस्से से उठा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी का नाम लेने की?
وہ غصے سے کپکپاتے ہوئے دھاڑا۔ شیر خان نے اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اسے دور پھینکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا گریبان پکڑنے کی، جب تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ شیر خان کے ماتھے پر ان گنت بل تھے۔ یہ تمہاری بھول ہے شیر خان کہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم نہیں جانتے میں اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس نے غصے سے ارد گرد دیکھتے بولا، میری بیوی کہاں ہے؟ اسے میرے سامنے لاؤ۔ اس نے بولا کہ اس کے آدمیوں نے شیر خان کا اشارہ پاتے ہی حفصہ کو لینے کے لیے چلے گئے۔ وہ بنا دوپٹے کی اور بنا سلیپر کے اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ سبطین نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ فکر نہیں کرو حفصہ، میں تمہیں اور تمہاری عزت دونوں کا محافظ ہوں۔ یقین کرو میں تمہیں یہاں سے بحفاظت نکال کر لے جاؤں گا، اس نے حفصہ کو حوصلہ دیتے کہا اور وہ اس کے سینے میں اسبات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے پتا ہے آپ میرا ایمرجنسی نمبر ہیں۔ اس کی بات سن کر سبطین ملک کے چہرے پر ان حالات میں پہلی دفعہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شیر خان نے دونوں کو الگ ہونے کا اشارہ کیا تو اس آگے آدمی نے ان دونوں کو الگ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج 100 تک گنتی گنو اور پھر تماشا دیکھو کہ میری بیوی کو دیکھنے پر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے سامنے رکھی شیشے کی میز پر لات ماری اور شیشہ چھناکے کی آواز کے ساتھ کرچیوں میں بٹ کر ٹوٹ گیا۔ حفصہ نے چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور یہاں بالکل 5 منٹ بعد ریڈ پڑ چکی تھی۔ باہر سپیکر میں اعلان ہو رہا تھا کہ اگر شیر خان اور اس کے آدمی اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تو وہ خود کو حراست میں دے دیں۔ شیر خان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تم نے پولیس کو بلا لیا یہاں پر؟ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں، پولیس کو تھوڑا ہی نہ بلایا ہے۔ تم کیا سمجھے میں مافیا کا لیڈر کوئی عام آدمی ہوں؟ ہاں، غلط سمجھے۔ میں مافیا کا لیڈر غلط آدمی نہیں ہوں، میں بالکل صحیح آدمی ہوں اور میں تم جیسے گندے مافیا کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں۔ اور میں جو ہوں وہ تم جان چکے ہو کہ میں کیا ہوں، کیونکہ باہر جو آئی ہوئی ہے وہ پولیس نہیں، وہ ایسی ٹیم ہے جو تمہیں ایسی جگہ غائب کرے گی کہ تمہارا نام و نشان بھی اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ اس کے سرد لہجے پر شیر خان لرز گیا۔ سب لوگ بھاگنے لگے۔ ان کی 10 تک گنتی گننے تک کوئی بھی باہر نہ نکلا تو ان لوگوں نے اندر آنے کی کوشش کی اور شیر خان کے آدمی وقفے وقفے سے اپنی جان گنواتے رہے۔ اس نے حفصہ کے ماتھے پر گن رکھ دی۔ اب بتا کیا کرے گا؟ تیری بیوی میرے قبضے میں ہے۔ وہ سبطین ملک کو دھمکی دے رہا تھا۔ سبطین ملک نے کہہ کہا لگایا، جب کبوتر اپنے سامنے موت دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور تو کبوتر سے زیادہ بزدل ہے۔ اس کی بات سن کر شیر خان کی جان نکلنے لگی۔ اسی دوران پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ موڑ کر اسے قابو کیا اور حفصہ بالکل آزادی کے ساتھ سبطین کے سینے سے آ لگی۔ اس نے حفصہ کے گرد بازو تنگ کر دیے تھے۔ اب اس ایمرجنسی نمبر کو اپنا شوہر مان لو، کیونکہ یہ ایمرجنسی نمبر رانگ نمبر نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے رائٹ نمبر ہے۔ اس کی بات سن کر حفصہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو میری بہادر ماں نے چنا ہے، کیسے رانگ نمبر ہو سکتے ہیں؟ اس نے گردن اونچی کیے پوچھا تو اس نے حفصہ کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور حفصہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ آئی ریئلی لو یو، اس نے کان میں سرگوشی کی۔ فورسز اپنا کام کرنے میں لگی ہوئی تھیں اور وہ رومانس میں۔ سر، سب کلیئر ہو گیا، اس نے گردن ہلائی۔ حفصہ کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ ایک دن میں وہ بچھڑ کر مل چکے تھے۔ سبطین نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ خوشی سے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے لبوں سے ان کو چن لیا تو وہ شرما سی گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔